Hello my dear students, welcome back to the physics class. I hope you all are well. So now we will pursue the few more concepts of electrostatics. In the series of that we will study regarding the torque caused by the electric dipole when it is kept in a uniform electric field, how we can calculate the work done in this process, and what is called the electrostatic potential. These three topics we are going to cover today. So first of all, we will start that what happened when dipole is kept in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. देखिए, दिस इज सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड and I have kept electric dipole at theta angle from this electric field. Clear? The minus q charge and plus q charge, and you all know the distance between these two charges would be 2L, this finite distance. Okay. So you know, due to the positive charge, the force will work F is equal to QE in this direction of intensity of electric field, and on minus Q the force will work in this direction, that is a QE also. So what we are seeing, one, suppose this is the F1 force and this is the F2 force. Suppose that two equal and opposite forces, okay, equal and opposite forces are working, and when a body two equal opposite forces are working, they try to rotate it. जब किसी बॉडी पर दो इक्वल अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं तो क्या करना चाहते हैं, उनको रोटेट करना चाहते हैं. क्लियर? ध्यान समझिएगा. अब ये क्या हो रहा है, इनको रोटेट करने का प्रयास कर रहा है तो टार्क लगेगा, और टार्क के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये 2L है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2L sin थीटा. And what is the formula of torque? Force into perpendicular distance. And what is the perpendicular distance? 2L sin theta. Agree? From where the F is equal to QE has come, we all know that E is equal to F upon Q naught or Q, so F is equal to QE. Now listen carefully. What is the value of F? Either we take this magnitude or this magnitude, both are same, of F1 or F2. So this is only QE into 2L sin theta, or we can write it like that, Q into 2L into E sin theta. And you know what is called the Q into 2L? That is called what, dear? It is the dipole moment. So it is become PE sin theta. समझ में आया कितना आसान वैल्यू था टार्क को निकालना. When theta is equal to 0 degree, what will happen? Sin 0, torque become 0. बट अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में. What happened when electric dipole kept parallel to the electric field? Find out the torque. अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है या इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है तो उस पे टार्क कितना लगेगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0. फिर ये पूछ सकता है, नाउ इट इन एग्जाम इट कुड बी आस्क्ड व्हेन देयर विल बी मैक्सिमम टॉर्क. नाउ सी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, so sin 91, so tau max equal PE. So from this concept plenty of question could be asked. बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. कब मैक्सिमम लगेगा, कब मिनिमम लगेगा, व्हाट हैपन व्हेन इट इज केप्ट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपन व्हेन इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. क्लियर? So this was the torque working due to electric field.
when a dipole is kept in electric field, so how much torque will work. Now we will pursue the one more method, and that is work done. How much work could be done. अब अगर टार्क रोटेट कर रहा है तो वर्क भी होगा भाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा. अब ध्यान समझना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और टार्क ऐसे रखा है, ये रोटेट कर रहा है कितने एंगल पे, चलो एंगल की बात पे बात कर लेंगे. अगर लीनियर मोशन होता तो लीनियर मोशन में हम क्या जानते हैं बेटा, लीनियर मोशन में हम क्या जानते हैं, आप बताएं. W = F × D. बट रोटेशनल मोशन जब हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, फोर्स बिकम टॉर्क and displacement become angular displacement with angle created, that is dW = tau d theta, work is equal to force into displacement, like that. If a small d theta angle is created when torque is rotating on an axis, if you have to take entire work, then what will you have to integrate this dW. Suppose that initial angle of torque was θ1, a dipole of θ1, and after do it is become θ2. So now listen, what is the value of dW? θ1 is to θ2, limits are there, tau d theta. Now see here, θ1 is to θ2, that's the limit. What is tau value? PE sin theta d theta. You know, P the constant value, come out θ1 to θ2 sin theta d theta. And what is the integration of sin theta? Minus cos theta. So what we will get? dW = PE cos theta, and what is the lower limit? θ1, upper limit θ2. When you will solve it, it will become PE cos minus P. Why minus P? Because integration of sin theta is a minus cos theta. So minus will come here. Upper limit minus lower limit, cos θ2 minus cos θ1. If we will multiply theta here, I am writing here, so W will come PE cos θ1 minus cos θ2. ये हो गया फॉर्मूला वर्क डन का. अब देखना, अगर इनिशियली डाइपोल पैरेलल था और रोटेट होने के बाद थीटा पे चला गया, तो इनिशियल एंगल अगर θ1 = 0 है और θ2 θ1 0 है और θ2 थीटा है, तो ये फार्मूला क्या बनेगा? W = PE 1 minus cos theta. This is the general formula to which everybody knows. Again question will come. Objective question may be asked here. कैसे? When torque would be minimum, or sorry, when work would be done minimum. Torque minimum तो पढ़ चुके हम. जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा बेटा. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 minus 1 0. जब वो पैरेलल रहेगा, ओके, जो नो एंगल इज क्रिएटेड 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा. और जब पूरा एक चक्कर पूरा टार्क वो डाइपोल घूम के आ जाएगा, अगर 180 डिग्री यहाँ बना लेगा, अगर हम थीटा = 180 डिग्री यहाँ रख दे, तो क्या होगा? W = PE 1 minus cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -1. तो आंसर आ जाएगा 2 PE, मिनिमम एट 0 डिग्री, मैक्सिमम एट 180 डिग्री. क्लियर? दैट वाज द वर्क डन एज वेल एज टार्क. दो चीज हमने पढ़ी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द विच वी विल स्टडी नाउ. लेट्स सी. दैट इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे अब हम लोग. याद होगा, आप पढ़े थे ना वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. जब किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से
ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर लाते थे तो जो वर्क डन होता था विदाउट एक्सेलेरेशन, उसी को हम क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा कोई चेंज यहाँ नहीं है, वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड था, हियर वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर वाज अ मास, हियर वुड बी चार्ज। तो सपोज दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एनी point just outside the electric field would be infinity for that. So if unit charge, suppose the Q naught, is brought at any point of this electric field, so whatever the work done, that work done would be known as the electrostatic potential. To bring a unit charge from infinity to any point of this electric field, any point कहीं भी ले आए, the work done would be called the इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, इफ Q नॉट इक्वल टू 1, सो V इक्वल टू W। वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कब, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड। हिंदी में बता देते हैं, किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना होता है, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और डेरिवेट करेंगे इसको, हम लोग आज इसको डेरिवेट करेंगे, तब आज का क्लास फिनिश करेंगे। चलो भाई, ये है पॉइंट P, जहाँ पे एक चार्ज Q रखा है, और ये चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोड्यूस कर रहा है कौन, पॉइंट P पर रखा हुआ चार्ज Q, या अगर आप O रखना चाहते हो तो ओरिजिन ले लो, O पर रखा ये चार्ज Q। इससे कोई पॉइंट P है जो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहीं पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, दिस चार्ज इज प्रोड्यूसिंग and on this point we need electrostatic potential. So definitely एक Q0 जो यूनिट चार्ज है, इसको हम कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, और कोई पॉइंट सपोज दैट यहाँ बेटा A है, और यहाँ से यहाँ A तक की दूरी कितनी दी है, x दी है। इस from infinity to this point P we can divide the all distance in small distance। अब देखो A से B लाना है, मान लो पहले शुरुआत करते हैं। हमने इस Q0 चार्ज जो पहले A पर था, पहले इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से लाना शुरू किया, बीच में कोई पॉइंट A है जिसकी डिस्टेंस O से कितनी है, x है। क्लियर। हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है। अगर ये चार्ज Q0 यहाँ रखा था, ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो इस पर एक फोर्स करेगा, फोर्स वर्क करेगा, एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है। ये Q0 चार्ज मान लो यहाँ पे इस समय है, ठीक है। इस पर एक फोर्स क्यों वर्क करेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, दे बोथ विल रिपेल ईच अदर। तो फोर्स किधर काम करेगा, आउटवर्ड काम करेगा इस पर। जब आउटवर्ड करेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होनी है बेटा, A टू B होनी है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मालूम है पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज पॉजिटिव वर्क डन। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव फोर्स। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेगेटिव वर्क डन होता है। तो यहाँ से यहाँ बॉडी आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -Tx, बिकॉज ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको -Tx क्यों हुआ, याद रखना, फोर्स उधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब हम वर्क डन निकालते हैं फ्रॉम A टू B आने में, इन्फिनिटी से बाद में देखेंगे। लाना कहाँ है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट R पे लाना, याद रखना, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, कहाँ तक लाना है, R पे लाना है। ला रहा है इन्फिनिटी से, इसे लोअर लिमिट इन्फिनिटी हुई, लाना कहाँ तक है, R तक। अब देखिएगा, सो स्मॉल वर्क डन DW क्या होगा बेटा,
एफ इंटू डी एक्स, तो एफ इंटू माइनस डी एक्स, बिकॉज हमने बोला है माइनस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। अब एफ क्या है, कूलम्स लॉ पे आते हैं, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, डिस्टेंस इज एक्स, सो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एग्री? यस, दैट इज द रिजल्ट। पुट हियर क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स। ये तो हुआ स्मॉल वर्क, अगर टोटल वर्क निकालना है इन्फिनिटी से यहाँ लाने पर, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा, W इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट R। वैल्यू बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टी एक्स। अब ध्यान से देखना, सारा कुछ कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू, सॉरी कांस्टेंट ले ले पहले बाहर, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस से बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर, अब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा, एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। एन की वैल्यू -2 दिया है, तो वैल्यू क्या आएगी, देखो यही लिख रहा हूँ, W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन यहाँ कांस्टेंट क्या था बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कांस्टेंट लेंगे बाद, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बेटा अब बताइए ज़रा मुझे, माइनस पहले से ही है, ये माइनस पहले से ही चला रहा है, एक्स पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, एक्स पावर -1, और एक्स अपॉन, इसको पहले देख लेते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इसका मतलब क्या है, वो -1/x। देख लो आप सॉल्व करने पर, तो -1/x करेंगे तो ये माइनस और माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा, इसको खत्म कर देगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा केवल 1/x, लिमिट इज व्हाट, इन्फिनिटी टू x। नाउ सॉल्व इट, व्हाट विल यू गेट, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट। अब बेटा याद रखिएगा, आर है अपर लिमिट, नहीं यहाँ पे आर लिखिए, तो अपर लिमिट क्या है, 1/r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी, 0, तो व्हाट विल कम, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, दैट इज हैड कम विच वैल्यू, वर्क वैल्यू कम बेटा। लेकिन v की फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, तो W की वैल्यू हम लोग क्या निकाले अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसल, जो वैल्यू आई उसको हम लिख देंगे। क्या वैल्यू आई v की वैल्यू, डू वी हैव स्पेस टू राइट, यस, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, that is the formula of electrostatic potential। अब देखना जरा ये फॉर्मूला जो आया है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट विल रिमेन वैल्यू पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल कम नेगेटिव। क्वेश्चन उठता है क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बात समझ में आ गई आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के कारण वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव होगी। चलिए भाई एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एक तरह से इसको और हम समझ सकते हैं, अंडरस्टूड, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। मैं इस प्रोसेस पे ही आता हूँ, यहीं पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ W इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखे तो वेक्टर F डॉट वेक्टर dx
और वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब ये बताइए हमें, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना बना 180 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, इससे भी वैल्यू क्या आ जाएगी -FTF, नेगेटिव वर्क। दोनों तरीके से हम समझ सकते थे इसको, या तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए वर्क डन नेगेटिव हुआ, यहाँ से भी समझ सकते हैं, फार्मूले से भी समझ सकते हैं। आई होप you all have understood this concept. In next meeting we will study the everything based upon the electric flux and Gauss theorem. Very important topic that would be, from where the question could be raised in your examination. Thank you. Have a nice day.